हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब एज यू नो योर डेट शीट्स आर आउट, आपको अपना एग्जाम का डेट पता है। तो अब इस रिवीजन सीरीज में एक एक करके हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे अलोंग विद द पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज की भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी अलोंग विद पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट्स अ प्रोसेस of producing individual of its own kind to maintain continuity of the species, right? And then second word is what is sexual dimorphism. Two very important questions are there. So what is sexual dimorphism? When male and female are externally different, this is known as sexual dimorphism. As you might have observed in case of cockroach, due to presence of anal style, male cockroach is different from female. Similarly, in case of ascaris and human beings also shows sexual dimorphism. So these are the points or headings on the basis of which we'll discuss this whole chapter, and we'll start with male reproductive system. Sex organs. These are again of two types, primary and secondary sex organ. The basic difference between these two, can you tell me? The organ which is responsible for gamete formation, directly involved in gamete formation, is known as primary sex organ. So primary sex organ in human males is testis, and in females it is ovary. So these are the primary sex organs in human beings. While all other organs which help primary sex organ in their functioning are known as secondary sex organ. So similarly in males, epididymis, vas deferens, urethra, etc. are secondary sex organs. Likewise in human females, fallopian tube, uterus, vagina, they are secondary sexual organs. So what are the reproductive events in a human being? Reproductive events starts with the formation of gametes. Have you just said primary sex organ is responsible for gamete formation? So it starts with gametogenesis. In males it is called spermatogenesis, in females it is known as oogenesis. Then it is followed by fertilization. So gametogenesis is pre-fertilization event. The whole process is divided into three phases: pre-fertilization, then second is fertilization, and post-fertilization includes from implantation to parturition. These are post-fertilization changes. Is it clear बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? Now, based on your knowledge of previous classes, you let me know what are major differences on the basis of which we can say sexual dimorphism is observed in human beings, or just write free secondary sexual characters. Now you might ask, sir, what are primary sexual characters? The characters which appears due to primary sex organ. So primary sexual characters: production of gametes, gamete formation. And secondary sexual characters in human beings, if we compare male and female, the first one is you might have observed low pitched voice in males. So you write down for female. Then second one is
broadening of shoulder occurs. Then mustaches and beard starts to appear. Larynx, or you can say Adam's apple, becomes prominent. And mainly abdominal breathing occurs in human males, while in females thoracic breathing occurs. So these are the basic or main secondary sexual characters. Rest you need to tell me in comment section. Now, male reproductive system. So human male reproductive system लोकेशन की अगर हम बात करें बच्चों, इट इज लोकेटेड इन pelvic region. Location is pelvic region. What are included in it? As you can see here, testes, primary sex organs, plus accessory duct, plus glands or accessory glands and external genitalia. ये सब मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं. तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द फर्स्ट इज टेस्टिस. अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा, टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. Male gamete is known as sperm. In fetal life, in early life, testes develop in abdominal cavity. But afterwards, with the help of inguinal canal, they descend into scrotum. Right? Now, what is this scrotum and why it is important? This pouch-like structure which covers a testis is known as scrotum. So, main function is protection or protects testes. And secondly, it keeps the temperature of testes 2 to 3 degrees Celsius less than body temperature. Why it is important? To keep the sperms alive, or we can say helps in spermatogenesis, process of sperm formation. So for that it is important. This scrotum is connected to testes by an elastic cord known as gubernaculum. And we just discussed that during development, during embryonic development, this testis, especially in 7 months, development to descent into scrotum. But sometimes they fail to do so. So inability of testis to descend into scrotum is known as cryptorchidism. That condition is known as cryptorchidism, which leads to sterility. Right? In each adult, testis is 2 to 3 centimeter wide and 4 to 2 centimeter in length. So these are the dimensions. Each testis is protected by 3 coverings. There are 3 coverings there which protect testis. The outermost is known as tunica vaginalis. Then tunica albuginea, which is fibrous layer.
and internal is known as tunica vesiculosa. This vesiculosa layer contains capillary network and connective tissue. Right? These three layers are present. Internally, this testis is divided into lobules, which are known as testicular lobules. And in each testis, nearly 250 these lobules are present, which are known as seminiferous tubules. These testicular lobules are known as seminiferous tubules. From these testicular lobules, seminiferous tubules arises. So in each lobule, 1, 2, 3 seminiferous tubules are present. So number of seminiferous tubules is nearly 750. Then from these testes, this fine network arises, which is known as rete testis. Rete testis is present. So let's discuss internal structure of seminiferous tubule. It consists of, as you can see here, this one is known as basement membrane, resting membrane, right? These are germinal epithelial cells. Germinal epithelial cells are present. So single layer of germinal epithelial cells are present. How development occurs? These germinal epithelial cells changes into primary spermatocyte. First, spermatogonium is formed. From spermatogonium, primary spermatocyte. So sequence is spermatogonium. From spermatogonium, primary spermatocyte, which leads to secondary spermatocyte, and finally spermatid are formed, which develops into motile sperms or spermatozoa. So primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, and spermatozoa with tail, you can see. So they are motiles. The nucleus of Sertoli cell is called spermatogonium. Nucleus of Sertoli cells. Now, what are these Sertoli cells? Just wait, I am telling you. See, in human males, two types of cells are present. Male germ cells, which are known as spermatogonia, we just saw. And on other hand, Sertoli cells are present. These are columnar cells. They perform supporting function and provide nutrition, nourishment to the spermatogonia. Spermatogonia or male germ cells are cuboidal and give rise to or form sperms. These Sertoli cells release or secretes ABP, androgen binding protein, which concentrate male sex hormone testosterone, and they also produce inhibin hormone, inhibin protein, you can see, which suppresses FSH synthesis in males, follicle stimulating hormone synthesis. With the help of Sertoli cells, these spermatids mature or develop into sperms. So in cytoplasm of Sertoli cells, this process occurs. Right? Now I think this is clear. So by spermatogenesis process, these spermatogonia develops into
sperms. We will discuss that in detail. Now between these seminiferous tubules, some second type of cells are also present. As I told you, interstitial cells. So between seminiferous tubules, ST I am writing, or seminiferous tubule, rounded cells in connective tissue, rounded cells are present. It is endocrine part of testis. They secrete male sex hormone testosterone, and these cells are known as Leydig cells or interstitial cells. So there are two types of cells. The first one are Sertoli cells and second one are interstitial cells. At ends, seminiferous tubules are present in the form of loop, and both ends continues in short rete testis, or they are also known as tubuli recti, which opens into vas efferens. Next part. The main function of vas efferens is to collect sperms. They collect sperms. And from this from this vas efferens comes first. From this vas efferens, it goes to epididymis. Inner lining of vas efferens is formed of pseudostratified epithelium. With pseudostratified epithelium, right? Now ये दोनों structure, which one? These two parts, pseudostratified epithelium with ciliated cells. Just a second, there is some issue with the ciliated cells. Yes, these two structures are commonly known as testicle. Vas efferens plus epididymis are commonly known as testicle. What is epididymis? It develops from Wolffian duct of embryo. Males में Wolffian duct होगी. Develops from Wolffian duct of embryo. Nearly 6 meter long, highly coiled tubular structure. ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है. जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, दैट इज नोन एज कैपुट एपिडिडाइमिस. मिडिल पार्ट इज नोन एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, and the innermost part or posterior part is known as coda epididymis. The function is to store sperms temporarily and provide nourishment to them. Nourishment to sperms. From this, sperms travel to next part, vas differentia. So till now what we have observed, firstly कहां से स्टार्ट हुआ? टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रीटे टेस्टिस, vas efferentia, epididymis, and now vas differentia. Again they carry sperms and they pass over urinary bladder. See, testis, network, rete testis, then this tube, vas efferentia, vas differens, as you can see here, and they pass over this urinary bladder and combine with urinary bladder and duct of seminal vesicle. Duct of seminal vesicle, as you can see here. So two ducts combine. Duct of urinary bladder plus ejaculatory duct. Ejaculatory duct कहां से आई? It is duct of
seminal vesicle. Seminal vesicle duct is known as ejaculatory duct. So duct of urinary bladder and ejaculatory duct combine with vasa differentia and they pass through prostatic, pass through prostate and open into urethra. Right? So what this urethra is doing? It carries sperms and urine both. There is a single opening in males to carry sperm and urine. So it is known as duct of urethra is known as urinogenital duct. क्योंकि दोनों secretions को carry कर रही है. Common pathway है. Urethra is larger or longer in males, nearly 20 centimeter as compared to females. Right? This urethra is also divided into three parts or three regions: prostatic urethra, membranous urethra, and penile urethra. So as the name suggests, it is present in penis and it has two sphincters to regulate the functioning, internal and external sphincter. Shortest part is membranous urethra without any covering, and the anterior most part which arise from urinary bladder and carry only urine is prostatic urethra. Now this secretion goes out through penis, which is known as external genitalia. So now let's discuss structure of external penis or external genitalia. This is the structure. It is vascular, spongy, erectile tissue. During sexual intercourse, sexual excitement, it gets filled with blood. If we look at the transverse section of penis, it is somewhat like this. There are two coverings. And it consists of dorsal vein, dorsal artery and nerves, but there is no bone present here. And inside, deep arteries are present. And on lower side, it consists of spongy urethra. Now, if we look from the ventral side, transverse section of penis, and this is sperm, right? There is a difference. We will discuss this structure also. At the tip of penis, highly erectile tissue is present, which is known as glans penis. Penis tip is known as glans penis. Then internally it consists of corpora spongiosum and corpora cavernosa. Sidewise, corpora cavernosa. So outer one is corpora cavernosa and paired structure is corpora spongiosum. Right? So these are three masses of highly erectile tissue present here. Now, male accessory glands.
sorry, now we'll discuss male accessory glands first, then female reproductive system. Male accessory glands तीन है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, या जिसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. Secretion of these three glands, okay, out of these only prostate is single, दो बाकी दोनों paired glands हैं. Secretion of these glands is known as seminal plasma. अब इस seminal plasma में क्या क्या है? This seminal plasma consists of fructose, calcium and enzymes. So presence of this fructose is present only in seminal plasma. The presence of fructose in female vaginal tract is confirmation of sexual intercourse, and in case of rape cases it is tested as a confirmatory test. So vesicle जो है seminal vesicle बच्चों, it forms 70% of semen, having pH 7.4, so alkaline है. It consists of prostaglandins along with citrate, enzyme and fructose, and it is present near the base of urinary bladder. Prostaglandin जो है, they are responsible for contraction of uterus, uterine contraction. So sperm move towards oviduct. Right? Second one is unpaired prostate gland. Large gland है जो सराउंड करता है यूरेथ्रा को, and it forms nearly 25% of semen. pH is slightly acidic, 6.8. It consists of citric acid. Acidic है ना इसलिए. This citric acid provides nourishment to the sperms. It activates spermatozoa to swim. And third one is Cowper's or bulbourethral gland. Again alkaline pH 7.5, forms 5 to 10% of the semen. It secretes mucus which lubricates endopenis and line of urethra. Now this is the reason for failure of withdrawal method. Failure of withdrawal method. Because some sperms are found in secretion of copper glands. So actual ejaculation से पहले ही कुछ sperms रिलीज हो जाते हैं. So जो बर्थ कंट्रोल का मेथड है, विड्रॉल मेथड, उसका फेलियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. Right? Now after ejaculation, in one ejaculation 3 to 5 ml of semen is produced, and 20 minutes after ejaculation clotting occurs. This semen is white viscous fluid, alkaline in nature. Now in normal ejaculation, sperm count is in 1 ml of semen 40 into 100 into 10 raised power 6 sperms are found. ठीक है. Now what is seminal fluid? Important question बनता है. What is seminal fluid? ये दो पार्ट, दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है. It contains sperms nearly 10% and seminal plasma which forms 90%. Right? Now 70% sperms काउंट होना चाहिए और उसमें से 40% हेल्दी हो फॉर इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन. ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे एक बार बताओ. दिस इज रिगार्डिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज यू कैन सी डायग्राम हियर. तो यहां पे भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, फटाफट आप बताते जाइए क्विक. ओवरी, पेयर्ड स्ट्रक्चर है. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं,
uterus, fallopian tube, vagina, and glands in the form of Bartholin gland, mammary gland, skin gland. Now ovary की dimensions की हम बात करें, so each ovary is nearly 2 to 4 centimeter into 1.5 centimeter. So L into B. Location in pelvic cavity, right? Structure, as you can see here, almond shape. Mesodermal in origin, mesoderm से arise होती हैं. Now this layer is known as mesovarium. Mesovarium is a part of broad ligament of uterus. It attaches ovary to uterine wall. Uterus की wall के साथ अटैच करता है. अब ओवरी में ना बच्चों 3 वॉल्स होती हैं, या ओवरी की जो वॉल है वो 3 लेयर्ड है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है. जो आउटर मोस्ट है दैट इज स्ट्रोमा, राइट. अब उस स्ट्रोमा में भी आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स, एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला. सो कोर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है. उसके बाद आपको याद रखना है पीजीटी. पी फॉर पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम. जी फॉर जर्मिनल एपिथेलियम, एंड टी फॉर ट्यूनिका एल्बुजिनिया. क्या क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग इज पेरिटोनियम, क्यूबोइडल सेल्स की लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, एंड दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, sorry, this is a middle layer, tunica albuginea. It is formed of white fibrous connective tissue. White fibrous connective tissue की लेयर है, ठीक. नाउ कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है? देखिए, ओवा फॉर्मेशन के लिए, एग फॉर्मेशन के लिए जो सेल है उसको कहते हैं बच्चों प्रोजेनेटर सेल. क्या कहते हैं इसको? प्रोजेनेटर सेल. सो दिस प्रोजेनेटर सेल फॉर ओवल फॉर्मेशन कहां से आती है? फ्रॉम योक सैक ऑफ ओवरी ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ठीक है. अब ये प्रोजेनेटर सेल चेंज हो जाएगी ओगोनिया में, एंड आफ्टर माइटोसिस इट फॉर्म्स प्राइमरी oocyte. यहां तक की बात समझ में आई आपको? क्या है मैं पूरा एक साथ आपको समझाता हूं. प्रोजेनेटर सेल्स हैं जो कहां से आई है? योक सैक ऑफ ओवरी चेंजेस इनटू oogonia, एंड आफ्टर माइटोसिस दे फॉर्म्स oocyte, जिसको हम प्राइमरी oocyte अभी कह रहे हैं. दिस प्राइमरी oocyte गेट अरेस्टेड एट दिस स्टेज. प्राइमरी oocyte गेट अरेस्टेड, रुक जाती है प्रोसेस एट दिस स्टेज. कौन सी स्टेज पे? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. पहले क्या हुआ था? माइटोसिस. अब क्या हो रहा है? मियोसिस. प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 याद रहेगा आपको. प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में ये अरेस्ट, तो फर्स्ट अरेस्ट यहां पे हो गया. सो एट बर्थ मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte आर प्रेजेंट. Millions of primary oocyte are present in female, but a large number of these primary oocyte degenerate. कब? From birth to puberty. birth से puberty के बीच में इसमें से we can say 90% degenerate हो जाती है, and this process is known as follicular atresia. This process is known as follicular atresia. So at puberty पे कितनी बची? 60 to 80,000 only in each ovary. So at puberty only 60 to 80,000 primary oocyte are present in each ovary at puberty. मिलियन से स्टार्ट हुआ था, and now only
60 to 80,000 लेफ्ट, राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 3 लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो कि कोर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड हो गई। कोर्टेक्स बना हुआ है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, मेडुला में क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, राइट। नाउ दिस प्राइमरी follicle changes into secondary follicle and secondary to tertiary and mature Graafian follicle. So every month this process occurs. Now at this tertiary follicle stage, a cavity appears which is known as antrum, लिकर folliculi. यही वो स्टेज है बच्चों जहां पे सेकेंडरी oocyte स्टेज पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल वॉल डिफरेंशिएट हो जाती है थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना में, और जैसे ही वो ग्राफियन फॉलिकल बनता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये रप्चर कर जाएगा एंड एग सेल जिसको हम ओवम भी कहते हैं, इट रिलीज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड oocyte स्टेज पे एग सेल रिलीज होती है ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों। अब जब एक बार ये रिलीज हो गई, नाउ रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पे बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम येलो बॉडी भी कहते हैं। दिस इज नोन एज येलो बॉडी। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ध्यान रखना। एंड दिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल, इट थिकन्स एंडोमेट्रियल वॉल। ठीक। अब जब ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट कर जाएगा एंड इट चेंजेस इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, जिसको हम व्हाइट बॉडी कहते हैं। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करना शुरू कर देगा एंड आफ्टर 9 days ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड आफ्टर 14th डे इट इज कंप्लीटली डिजेनरेटेड। ठीक, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अब मैं आगे जाने से पहले एक बार आपको बता देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखो, जो सेकेंडरी oocyte बना, जो सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हुई वो कैसी थी? सेकेंडरी oocyte में कितनी लेयर्स थी बच्चों? मैंने कहा था जो सेकेंडरी oocyte है उसमें फॉलिकल सेल्स हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स, अगर ये सिंगल लेयर्ड है तो, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये मल्टी लेयर्ड हो जाता है। ठीक, और कई सारी लेयर्स बना देता है। तो यहां पे डायग्राम हम बनाते हैं। ये डायग्राम, ये ग्राफियन फॉलिकल की बात। जो आउटर मोस्ट पार्ट है अभी हमने बात करी थी, वो डिफरेंशिएट हो जाता है दो रीजन्स में, थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना। तो थिका एक्सटर्ना और अंदर की तरफ थिका इंटरना में डिवाइड हो जाएगा। जो ये वाली लेयर्स है, ये वाली लेयर है, इट इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा सेल्स यहां पे प्रेजेंट है एंड अंदर की साइड जो पार्ट है दैट इज नोन एज, जो सराउंड करता है oocyte को, इट कंसिस्ट ऑफ जोना पेलोसुडा।
ठीक। तो सेकेंडरी ओसाइट इज सराउंडेड बाय नॉन सेलुलर लेयर, जो ना पैलेसोडा। अब जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जो बिल्कुल पास हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो बिल्कुल पास हैं ओसाइट के, ये इलोंगेटेड हो जाएंगी और क्या बना देंगी, कोरोना रेडिएटा। दे फॉर्म्स कोरोना रेडिएटा। कौन सी सेल्स, ग्रेनुलोसा लेयर की वो सेल जो ओसाइट के बिल्कुल पास थी, इलोंगेट होके कोरोना रेडिएटा बना देती हैं। एंड ए कैविटी अपीयर्स, दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, लिकर फॉलिकल। ठीक। और बाहर की तरफ ये दो रीजन में डिवाइड हो गई, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना। सो थिका जो आउटर लेयर है वो तीन कवरिंग से बनी हुई है, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना एंड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, 3 लेयर्ड है। और सेकेंडरी ओसाइट सस्पेंड होती है एंट्रम में बाय मास ऑफ सेल्स, जिनको क्यूमुलस ओफ्रस कहते हैं, which is known as cumulus ophrus। ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैफियन फॉलिकल। अब बाकी पार्ट्स की बात कर लें तो ओवरी के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फैलोपियन ट्यूब। इट इज longest part, divided into 3 regions। पहला पार्ट है इंफंडिबुलम, सेकेंड पार्ट इज नोन एज एम्पुला एंड थर्ड पार्ट इज नोन एज isthmus। सो दिस इज इंफंडिबुलम, दिस इज एम्पुला एंड दिस इज isthmus। एम्पुला रीजन में ही सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा। सो इंफंडिबुलम फनल शेप्ड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसमें, जिनको हम फिम्बरी कहते हैं। दे रिसीव एग सेल रिलीज बाय ओवरी। ठीक है। एम्पुला वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है। यहां पे क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर इन एम्पुला रीजन। एंड जो थर्ड रीजन है दैट इज isthmus, थिकेस्ट मतलब थिक वॉल्ड है बट नैरो रीजन। और उसके अलावा एक फंडिक पार्ट भी कहते हैं जो कि यूट्राइन पार्ट है। नाउ फैलोपियन ट्यूब प्लस यूट्रस प्लस वजाइना, ये तीनों मिलके इट इज नोन एज फीमेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट। ठीक है बच्चों, ये बना देती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, हमारी फैलोपियन ट्यूब है, जो कि सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम से बनी हुई है। सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम यहां पे प्रेजेंट है। तो फैलोपियन ट्यूब के बाद अगला पार्ट क्या आ जाता है, यूट्रस। तो यूट्रस की बात कर लेते हैं, जिसको वोम्ब भी कहा जाता है। इट इज होलो मस्कुलर रीजन, inverted pear shaped, inverted pear shaped structure, supported by pelvic cavity में प्रेजेंट है, तो supported by broad ligament, जिसको डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। मिडिल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ इनवॉलेंटरी मसल्स। And the innermost part is known as endometrium, which is vascular part. Changes of
menstrual cycle, implantation, placenta formation occurs here. It is formed of ciliated columnar epithelium. और उसके साथ साथ का अंडरलाइन टिश्यू. यूट्रस और वजाइना के बीच का जो रीजन है दैट इज नोन एज सर्विक्स. ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ मुझे, बताओ. तो यूट्रस के फंक्शन क्या क्या हो गए बताओ. यूट्रस क्या क्या काम करेगा. मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी यहां पे, उसके अलावा इम्प्लांटेशन होगा यहां पे, जेस्टेशन पीरियड यहीं पे कंप्लीट होगा, है ना. देन नेक्स्ट पार्ट इज वजाइना. नियरली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर. फाइबर्स भी हैं, मसल्स भी हैं, जहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट. ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट हियर. ओपनिंग of vagina is known as vaginal orifice. Opening is known as vaginal orifice. Partially vagina is covered by hymen. Partially it is covered by hymen. इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है. इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होते हैं जो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. एसिडिक जो है एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट हो जाता है जो हार्मफुल पैथोजेंस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ठीक है बच्चों. नाउ we are going to discuss external genitalia in females. External genitalia देखिए, जिसको विल्वा भी कहा जाता है. सबसे पहले जो पार्ट आ जाता है दैट इज नोन एज मोन्स प्यूबिस. तो हम डायग्रामेटिकली एक बार इसको देख लेते हैं. राइट, देयर आर टू फोल्ड्स. तो यहां से ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं दैट दे फॉर्म या दे आर नोन एज मोन्स प्यूबिस या प्यूबिक हेयर्स. इट इज हैविंग स्किन प्लस फैटी टिश्यू. ठीक, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट है यहां पे. उसके बाद सेकेंड पार्ट जो आ जाता है दैट इज नोन एज क्लिटोरिस. हाईली erectile tissue without any opening. It is homologous. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है. It is homologous to glans penis of male. Glans penis of male. उसके क्या है ये homologous. It is homologous to glans penis of male. Clitoris. उसके बाद जो outer part है that is labia majora. टू आउटर लार्ज फोल्ड्स ऑफ स्किन. ठीक है, जो वल्वा की बाउंड्री बनाते हैं. यहां पे भी प्यूबिक हेयर्स होंगे प्लस सेबेशियस ग्लैंड, ओएल ग्लैंड. ठीक है बच्चों. अगेन इट इज होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम. वो भी प्रोटेक्टिव पाउच था, ये भी प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना रहा है. होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल. याद रह जाएगा ये भी आपको. अंदर की तरफ क्या हो गया, लेबिया माइनोरा, इनर फोल्ड ऑफ स्किन. अब ये मिलके क्या बना देते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर नोन एज फोर्थ शीट. ये मिलके क्या बना देते हैं, फोर्थ शीट. लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल.
ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। पेनाइल यूरेथ्रा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। अब यहाँ पे दो ओपनिंग होंगी, एक यूरेथ्रल और एक जेनाइटल ओपनिंग। अब फोर्चीट और एनस के बीच का जो एरिया है, अब यहाँ नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एनस प्रेजेंट होगा, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज पेरिनियम। द एरिया बिटवीन फोर्चीट एंड एनस इज नोन एज पेरिनियम। अब इंटरनली यहां पे जो लेबिया माइनोरा है, यहां पे ग्लैंड ऑफ स्किन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ग्लैंड ऑफ स्किन, ठीक। नीचे की तरफ यहां पे बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर की तरफ की ओपनिंग को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया। नीचे की तरफ वेजाइनल ओरिफाइस हो जाएगा। तो दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर नोन एज एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है बच्चों। यहां तो कोई कंफ्यूजन, यहां तो कोई समस्या? अच्छा, क्विकली मैं आपको ग्लैंड्स का और आइडिया दे देता हूं। ये दोनों जो ग्लैंड मैंने बताए, एक को कहते हैं लेसर वेस्टिबुलर और दूसरा कहलाता है ग्रेटर वेस्टिबुलर। लेसर एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर, या इनको हम ग्लैंड ऑफ स्किन एंड ग्लैंड बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। तो एक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है सबसे पहले, तो वो तो क्या है, उनकी लोकेशन, साइड ऑफ ओपनिंग ऑफ, इट इज प्रेजेंट ऑन साइड्स ऑफ ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रल ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड में, जबकि ये कहां प्रेजेंट होता है, साइड ऑफ ओपनिंग ऑफ वजाइनल ओरिफाइस। ये यूरेथ्रल, ये कहां पे, वजाइनल ओरिफाइस। तो लोकेशन का फर्क हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्या सिक्रेट करेगा, इट सिक्रेट्स म्यूकस, जबकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, ये वाटरी सब्सटेंस सिक्रेट करेगा। तीसरा, इट इज होमोलोगस टू प्रोस्टेटिक या होमोलोगस टू प्रोस्टेट ऑफ मेल, एंड इट इज होमोलोगस टू, इट इज सिमिलर टू कॉपर्स ग्लैंड, होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल, ठीक है। सो ये दो ग्लैंड यहां पे प्रेजेंट होते हैं। सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया अभी तक। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बच्चों मेमोरी ग्लैंड की, ठीक है। ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए बच्चों कि व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड। बताओ क्या होता है मेमोरी ग्लैंड। अभी तक आपने ये टॉपिक तो फिर भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बट ये टॉपिक आपने अभी तक डिस्कस नहीं किया होगा। तो मेमोरी ग्लैंड बच्चों होता है मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, याद रहेगा। लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड इन थोरैक्स ऑन पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। अनडेवलप्ड होता है प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, उनके इफेक्ट में ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे 3 टाइप का टिश्यू मिलता है बच्चों, 3 टाइप का टिश्यू मिलेगा मेमोरी ग्लैंड में। पहला है ग्लैंडुलर टिश्यू, सेकेंड वन इज नोन एज फैटी टिश्यू, एंड थर्ड वन इज फाइब्रस टिश्यू। These 3 type of tissues are present here. अब externally each breast has a projection known as nipple. This nipple is surrounded by a circular pigmented area known as areola. अब जो glandular tissue है हर breast में, it is divided into 15 to 20 memory lobes. यहां पे ये 15 से 20 memory lobes बन जाती हैं, right? अब हर लोब में एक ग्रुप है, क्लस्टर है सेल्स का, जिनको हम क्या कह रहे हैं, एल्वियोलाई। दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज एल्वियोलाई।
राइट। एल्व्यूलर सेल ही हैं जो मिल्क को सिक्रीट करती हैं, जो कि स्टोर हो जाता है एल्व्यूलाई की कैविटीज में। एल्व्यूलाई ओपन हो जाएंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन हो जाएंगे या ज्वाइन कर जाएंगे टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से लैक्टिफेरस डक्ट अराइज होगी। देखिए ओवरऑल मैं बताता हूं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक फ्लो चार्ट के हेल्प से, तब चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बच्चों है यहां से शुरू करते हैं, राइट। ये मान लीजिए निपल एरिया है, राइट। तो इसके चारों तरफ क्या है, डार्क पिगमेंटेड एरिया जिसको हम एरियोला कह रहे हैं। यहां पे क्या प्रेजेंट है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, मेमोरी एम्पुला, ठीक है। ओके जी, अब इसमें साइड वाइज डक्ट्स आके जुड़ती रहेंगी, ये क्या कहलाएगी, मेमोरी डक्ट, ठीक है जी। और मेमोरी डक्ट ओपन होगी इसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल में, तो मेमोरी ट्यूब्यूल बन गया यहाँ पे। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल से ये जो रीजन है दैट इज नोन एज एल्व्यूलाई, राइट। तो क्या क्या है, ओके पहले मैं पूरा डायग्राम बना देता हूं और यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हो जाएंगे। देखिए क्या सीक्वेंस हुई, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेमोरी लोब्स, जो 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं वो ओपन होती हैं एल्व्यूलाई में। एल्व्यूलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बना देती है मेमोरी डक्ट, जो फिर से 15 से 20 ट्यूब्स होती हैं। मेमोरी डक्ट ओपन हो जाएंगी मेमोरी एम्पुला में, एंड यहां पे मिल्क टेम्पररी स्टोर हो जाएगा इन द लैक्टिफेरस डक्ट्स, एंड इट गोज आउट व्हाइल बेबी सकल्स इट निपल्स के थ्रू। और इसके आसपास का जो एरिया है उसको हम एरियोला कह रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, राइट। कि ग्लैंडुलर टिश्यू से मेमोरी लोब बनी, मेमोरी लोब से एक ग्रुप बना सेल्स का जिसको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। एल्व्यूलाई मिल्क सिक्रीट करते हैं जो कैविटी में स्टोर हो गया। एल्व्यूलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हुए, ट्यूब्यूल ज्वाइन करके मेमोरी डक्ट बना देते हैं। अब मेमोरी डक्ट लैक्टिफेरस साइनेसिस बना देंगे नियर एम्पुला, जहां पे स्टोर हो जाएगा टेम्पररी मिल्क बिफोर गोइंग आउट थ्रू निपल। बिल्कुल सिंपल है, बच्चे बहुत डरते हैं इससे। चलिए कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो मेन फंक्शन क्या हो गया मेमोरी ग्लैंड का बच्चों, ए सिक्रेशन ऑफ मिल्क। व्हाट इज लैक्टेशन, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता, व्हाट इज लैक्टेशन, व्हाट इज लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ मिल्क, सिंथेसिस ऑफ मिल्क कहां पे, इन एल्व्यूलाई। क्यों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब यहां पे बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन आ जाता है, पीआरएल और ऑक्सीटोक्सिन। देखिए ये क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। और ऑक्सीटोक्सिन क्या है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। बच्चों याद रखना दोनों में फर्क है, प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन, ठीक। तो मिल्क इजेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो पोस्टीरियर लोब से निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब कोलोस्ट्रम क्या होता है, बहुत न्यूट्रिशियस कंप्लीट डाइट, फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज नोन एज कोलोस्ट्रम, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के 2 से 3 के बाद 2-3 दिन के लिए जो मिल्क रिलीज होता है। क्यों ये कंप्लीट डाइट कहलाती है, इट हैज हाई प्रोटीन कंटेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है इसमें जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और लेस फैट है इसमें, ठीक है। चलिए मिल्क शुगर क्या होती है, लैक्टोज होती है, याद रखने के लिए आपको बता देता हूं, लैक्टोज इज मिल्क शुगर। सो दिस इज रिगार्डिंग
मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके हम बात करने वाले हैं दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। साइक्लिक चेंजेस जो रिलेटेड हैं ओवुलेशन एंड सिक्रेशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ प्राइमेट्स, एंथ्रोपॉइड प्राइमेट्स हैं, वो एप्स हैं, मंकीज हैं, ह्यूमंस हैं, है ना। तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मिनार्की एंड स्टॉपेज इज नोन एज मेनोपॉज। स्टार्टिंग एंड स्टॉप, मिनार्की एंड मेनोपॉज, ठीक है जी। 13 to 15 ईयर्स की एज में नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अगर नहीं होती है तो दैट कंडीशन इज नोन एज अमनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है कि जब मेंसेस 8 साल से पहले स्टार्ट हो जाए तो उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है, ठीक है। बट बच्चों चलिए, तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनकी बात करते हैं हम। यहां पे आप देख पा रहे होंगे देयर आर 4 फेजेस, ब्लीडिंग फेज, फोलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड सिक्रेटरी फेज, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए, नहीं है तो डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम। तो सबसे पहले जो है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। टोटल जो 28 डेज की साइकिल है उसमें ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, एलएच प्रोडक्शन डिक्रीजेस। तो मैं यहां पे साथ में लिखता जाता हूं एलएच प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। कब? पहला फेज है ब्लीडिंग फेज में, ठीक है बेटा जी। चलिए, तो अब उससे क्या हो गया, जो कॉर्पस लूटियम था वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो कॉर्पस लूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज, क्योंकि कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो गया। ये 3 मेजर चेंजेस समझ में आ गए, ठीक है जी। अब जब एंडोमेट्रियल वॉल डिजेनरेट करेगी तो जो एस्ट्रोजन लेवल है वो भी फॉल डाउन हो जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल भी फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक। और डिजेनरेटेड सेल्स प्लस oocyte एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो जो ब्लड है, ये सारी की सारी चीजें वजाइनल ओपनिंग या फीमेल जेनाइटल ट्रैक के थ्रू बाहर आ जाती है, विच इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। बात समझ में आ गई? पहला फेज समझ में आ गया। सेकंड फेज, सेकंड फेज क्या होता है बताइए? प्रोलिफरेटिव फेज होता है, जिसको हम फोलिकुलर फेज कहते हैं। तो टोटल साइकिल का 10 to 12 डेज का जो पीरियड है, पहले 5 दिन के बाद, दैट इज फोलिकुलर फेज। तो 10 to 12 डेज का फेज है, या हम कह सकते हैं 6 to 13 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है वो क्या करेगी? जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH सिक्रीट करेगी। वो क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा ग्रेफियन फॉलिकल को और एस्ट्रोजन सिक्रीट करवाएगा। क्या क्या हो रहा है देखिए यहां पे। सबसे पहले जो पिट्यूटरी लोब है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, उससे क्या हुआ? ग्रेफियन फॉलिकल स्टिमुलेट हो गई, और स्टिमुलेटेड ग्रेफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करेंगे। अब उसकी वजह से जो एंड्रोमेट्रियल वॉल थी, एंड्रोमेट्रियम की जो वॉल थी, वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देगी, दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये सेकंड फेज में हो गया। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है दोबारा से एंड्रोमेट्रियल वॉल अपने आप को प्रोलिफरेट कर। थर्ड फेज जो है ओवुलेटरी फेज, ये 1 दिन का होता है। इट अकर्स ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 डे का। यहां पे एग सेल इज रिलीज्ड ऑन 14th डे एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्टेज पे सिक्रेट होती है? एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, एग सेल रिलीज ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद रहेगा। तो थर्ड फेज क्या हो गया? थर्ड फेज क्या हो गया? ओवुलेटरी फेज 14th डे पे।
अब यहां पे आप डायग्रामेटिकली अगर देखें तो LH का सर्ज है, LH पीक लेवल पे है, इस कंडीशन को LH सर्ज कहा जाता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉजेज रप्चरिंग ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल, और जो XL है वो रिलीज हो जाती है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। और जो लास्ट फेज है, फोर्थ फेज है, दैट इज नोन एज ल्यूटियल फेज। फोर्थ फेज क्या है बच्चों? ल्यूटियल फेज। ये ऑलमोस्ट 14 डेज का होता है, 50%, तो 15 से लेकर 28 डेज। तो जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल थी वो चेंज किस में हो जाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट कर देगा? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? वो स्टिमुलेट कर देगा कोइलिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड एंड वाटरी म्यूकस, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट कर जाएगा, एंडोमेट्रियल वॉल भी डिजेनरेट कर जाएगी, और दोबारा से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। यही तो हो रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट 14 डेज तक उसने अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर कर लिया। प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन होगी कॉर्पस ल्यूटियम से, रप्चर्ड फॉलिकल सेल्स, और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दोबारा से ये फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करना चाहें, पूरी प्रोसेस को अगर हम समराइज करें तो किस तरह से लिख सकते हैं इसको? बताइए। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा? मैं इसको ऐसे बना सकता हूं क्या? ये 28 डेज की साइकिल है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो ये तो 14th डे हो गया, यहाँ पे थर्ड फेज ओवुलेटरी फेज हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला फेज 14th डे का था, 15 से 28 तक, जिसको हम क्या कहते हैं? सिक्रेटरी फेज। ठीक, अब बाकी 2 फेजेस में ये डिवाइड हो जाएगा। 3 to 5 डेज क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग फेज, है ना? ये ब्लीडिंग फेज हो गया। और नेक्स्ट 4 से लेके 13 तक क्या हो गया? दोबारा से प्रोलिफरेशन होगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगी, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज हो गया। ठीक, समझ में आई बात? पक्का? चलिए, तो दिस इज रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये हार्मोन्स का लेवल आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि क्या ओवेरियन हार्मोन कैसे चेंज हो रहे हैं और पिट्यूटरी हार्मोन्स का कैसे रोल चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं? चलिए, तो पहला स्टेप हो गया हमारा प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी में क्या आता है सर? बताओ, एम्ब्रियोलॉजी में क्या आएगा बच्चों? बताओ, बोलो। फर्टिलाइजेशन एंड उसके बाद के इवेंट्स आ जाएंगे सारे, है ना? तो अगर फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमेट्स का तो जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद जो चेंजेस होना शुरू होंगे, तो वो सारा किस में आ जाता है बच्चों? एम्ब्रियोलॉजी में। वॉन बेयर इज नोन एज फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अब देखो, 2 चीजें हैं, एक है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। और दूसरा वर्ड है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या फर्क है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, है ना? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ये होता है सिंथेसिस। ठीक है, तो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, oogenesis फीमेल में। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे हम, देन क्लीवेज, और उसके बाद हम एम्ब्रियोनिक स्टेज डिस्कस करेंगे जिसमें मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन, एंड फाइनली इट एंड्स विद ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक, यही बातें हैं जो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो गैमेटोजेनेसिस से शुरू करते हैं। चलिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है 74 डेज का प्रोसेस। ठीक है जी,
जो सीजनल ब्रीडर्स हैं जैसे बैट्स हैं, लामा है, वहां पे टेस्टिस डिसेंड कर जाती है स्क्रोटम में ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और उसके बाद वापस आ जाती है। लेकिन कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो उसमें टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है ना। और इंट्रा एब्डोमिनल किस में है, चलिए बताइए टेस्टिस एक बार, एलिफेंट और व्हेल में। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा है पूरा प्रोसेस। प्यूबर्टी जैसे ही आती है, सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और ये पूरी प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो 74 डेज में कंप्लीट हो रही है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ मेल्स या टेस्टिस। ठीक, अब दो हार्मोन्स एफएसएच एंड टेस्टोस्टेरोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। ठीक, अब जो वॉल है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में दो टाइप के सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया जिनको जो क्यूबोइडल सेल्स होती हैं, जो यहां पे हम देख पा रहे हैं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स जो प्रोटेक्ट करती है स्पर्म्स को फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, और जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है दे डेवलप फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, और डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया क्या बना रहे हैं, यहां पे मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, दिस वन, हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, यहां से इसकी फॉर्मेशन होती है, वो डिप्लॉइड सेल है। इसमें होगा माइटोसिस, जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक, तो यहां से डिप्लॉइड सेल्स ही हैं क्योंकि माइटोसिस हुआ है। तो दो टाइप के स्पर्मेटोगोनिया यहां पे प्रोड्यूस होंगे, टाइप ए एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। राइट बच्चों, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है दे आर प्रिकर्सर्स ऑफ स्पर्म्स, एंसेस्टर कह सकते हो, यहीं से बनेंगे स्पर्म। इसके बाद आ जाता है पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड वन इज नोन एज ग्रोथ फेज, सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज। अब क्या होगा इसमें सिर्फ साइज बढ़ेगा एंड इट चेंजेस इनटू डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी ये डिप्लॉइड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज तक ये डिप्लॉइड रहती है। नाउ थर्ड फेज अकर्स विच इज मैचुरेशन फेज, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। मैचुरेशन फेज इज लॉन्गेस्ट फेज, जहां पे रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। तो जो अभी तक डिप्लॉइड सेल थी वो किस में चेंज हो जाएगी, हैप्लॉइड में। अब मियोसिस भी यहां पे दो बार होगा, मियोसिस 1 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी जो कि हैप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज फॉर्म्ड। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज स्पर्मेटिडोजेनेसिस। यहां तक तो इसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज स्पर्मेटिडोजेनेसिस। अब इसमें दोबारा से मियोसिस होगा, मियोसिस 2 अकर्स। तो इस स्पर्मेटिडोजेनेसिस सॉरी सेकेंडरी स्पर्मेटिडोसाइट से स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, इसको कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिडोजेनेसिस प्रिमोर्डियल जर्म सेल से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस। राइट, और उसके बाद ये स्पर्मेटिड चेंज हो जाएंगे स्पर्म्स में। तो ये पूरी प्रोसेस स्पर्मेटिड और स्पर्म फॉर्मेशन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हम कह सकते हैं स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। तो 3 वर्ड हो गए देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, पूरी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मेटिडोजेनेसिस कि प्रिमोर्डियल सेल से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन। ठीक, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस।
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनना। एक और कंफ्यूजिंग वर्ड होता है यहां पे, स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है बच्चों। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड है वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में, और यहां से जब वो रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कह देते हैं। याद रह जाएगा आपको? पक्का? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, दैट इज oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब oogenesis को डिस्कस करते हैं। oogenesis में क्या होता है? एक मिनट, ये रहा, यस, ये oogenesis है। अब ह्यूमन बींग्स में ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। इन फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड जो फीमेल जो फीटस है उसमें प्राइमरी फोलिकल्स होते हैं लगभग 1700 हर फोलिकल, हर ओवरी में। सेकेंड मंथ में ये डिवाइड होके ये नंबर कम होता रहता है, फोलिकुलर एट्रेसिया तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अब होता क्या है, उगोनिया बन गया। तो ये सारे प्रोसेस को, सारे स्टेप्स को हम दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। तो इसलिए तो इसको डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं। तो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई एम्ब्रियोनिक लाइफ में और बर्थ पे रुक गई, बर्थ पे ये रुक गई, प्रोफेज 1 में रुक जाती है मियोसिस 1 के, और उसके बाद प्यूबर्टी पे ये दोबारा से स्टार्ट होती है बच्चों। तो ये दो स्टेजेस में प्रोसेस हो रही है ना, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहा जाता है। पूरा प्रोसेस हो क्या रहा है देखो, फिर से हमें अलग से इसको डिस्कस करने की जरूरत है, अलग से इसको डिस्कस करते हैं। देखो कितना योग प्रेजेंट है, पहला तो उस पर डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद साइज उसका उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो दो फेजेस मैं बता रहा था। तो पहला फेज क्या है, एट बर्थ। बर्थ पे क्या, किस स्टेज में प्रेजेंट है, ये प्राइमरी oocyte स्टेज में प्रेजेंट है। एट बर्थ इट इज प्रेजेंट इन प्राइमरी oocyte स्टेज। यहां पे होगा रिडक्शनल डिवीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। तो मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन अकर्स एट बर्थ, और ये अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज 1 में, डिप्लोटिन स्टेज में। प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे जी, यहां पे, हाँ ये स्लाइड हम यूज करते हैं, जस्ट ए सेकंड, कुछ टेक्निकल एरर है यहां पे स्लाइड्स में। हाँ, चलिए, तो प्राइमरी oocyte है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो बर्थ पे क्या हुआ, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन ये रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 इसको हम कहते हैं, गेट अरेस्टेड इन, रुक जाता है इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक, उसके बाद मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा। तो अगेन यहां पे अनइक्वल डिवीजन अकर, तो दो सेल्स बन जाएंगे। ये मियोसिस है तो रिडक्शनल डिवीजन हो गया। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगी। यहां पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। ठीक, अब जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ साइटोप्लाज्म का, उसकी वजह से जो दूसरी सेल बनी, इट एंटर्स इनटू मियोसिस 2 एंड इट फॉर्म्स सेकेंडरी oocyte।
अब ये सेकेंडरी साइट फिर से रुक जाएगी, किसमें, मेटाफेज 2 में। अरेस्टेड इन, तो 2 बार प्रोसेस रुक रही है इन मेटाफेज 2। और स्पर्म की एंट्री जो है वो उसके लिए स्टिमुलस का काम करेगी, ठीक है। अब इसमें दोबारा से डिवीजन हुआ तो सेकंड पोलर बॉडी बन गई, सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो गई, ठीक। और सेकेंडरी oocyte स्टेज पे हमें पता है ओवुलेशन अकर हो जाता है, एग सेल रिलीज हो जाती है। लेकिन मियोसिस 2 सिर्फ तभी होगा जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, सो इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलस। तो स्पर्म एंट्री रीस्टार्ट कर देता है सेल साइकिल को, और क्यों, क्योंकि जो एमपीएफ है, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर है, उसको ब्रेक डाउन कर देगा और एपीसी को स्टार्ट कर देगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को। फर्स्ट पोलर बॉडी डिजनरेट हो गई, उसमें कोई चेंज नहीं आया, सो जो अनवांटेड क्रोमोसोम का नंबर था उससे हमें छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल था, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल डिप्लॉइड सेल, उगोनिया बन गया, वो भी डिप्लॉइड सेल, माइटोसिस हुआ, तो ये सारा ग्रोथ फेज है बच्चों, दिस इज ग्रोथ फेज, ठीक। और इसमें फिर माइटोसिस होके प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर ये बिफोर बर्थ वाला काम था सारा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को हमने कंपेयर कर लिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है बताओ, उसके बाद आ जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ये वाला जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। तो इसमें सिनगैमी होगा, सिनगैमी अकर्स। सिनगैमी क्या होता है, परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट साइटोप्लाज्म। और फिर एक वर्ड और आ जाता है एम्फीमिक्सिस, जब उनके क्रोमोसोम की भी इंटरमिक्सिंग हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, एम्फीमिक्सिस। तो अब क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले होगा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कि जब वो वेजाइना में एंटर करता है स्पर्म, तो वेजाइना की जो सिक्रेशंस हैं वो जो कोटिंग सब्सटेंसेस थे उसके आसपास, उसको रिमूव करने का काम करते हैं। तो जो रिसेप्टर साइट थी एक्रोसोम की वो एक्सपोज हो जाती है, रिसेप्टर ऑफ एक्रोसोम आर एक्टिव, ठीक। सो नाउ दिस एक्रोसोम कैन पेनेट्रेट द एग सेल। ये 5 से 6 घंटे की प्रोसेस होती है, टेक्स 5 to 6 आवर्स, राइट। अब ड्यू टू वीकर मेम्ब्रेन, जो व्हाट यू से, जैसे ये केमिकल्स रिमूव हुए तो जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा वीक हो गई, परमेबल हो गई। तो कैल्शियम आयन के एंट्री की वजह से जो स्पर्म की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और एक्रोसोम इजीली पेनिट्रेट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म लाइसिन्स। स्पर्म लाइसिन जिनको लाइक अब देखिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्म का सरफेस पे है एंटी फर्टिलाइजिंग, क्या है, एंटी फर्टिलाइजिंग। एग के सरफेस पे क्या है, फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग क्या है, एसिडिक प्रोटीन। फर्टिलाइजिंग क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है बच्चों। तो ये मान लीजिए एग मेम्ब्रेन है, तो यहां पे जो स्पर्म है वो आके बाइंड करेगा, तो ये स्पर्मोफिलिक साइट हो गई। तो अगर हम एक रफ एस्टिमेट माने कि 100 स्पर्म में से 10 से 12 स्पर्म ही ये स्पर्मोफिलिक साइट पे पहुंचते हैं। अब ये एंटी फर्टिलाइजिंग जो रिएक्शन है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है, ठीक है। नाउ स्पर्म्स आर अटैच्ड टू एग सरफेस, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एग्लूटिनेशन, कि 10 से 12 स्पर्म वहां पे अटैच्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन।
पहला तो क्या था, कैपेसिटेशन। अब एक्रोसोमल रिएक्शन को, जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है, कैपेसिटेटेड स्पर्म जो है वहां पे एक्रोसोम की वजह से स्पर्म लाइसिन्स रिलीज हुए, जिसमें कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम्स हैं, कोरोना रेडिएटा, उसको पेनेट्रेट करने के एंजाइम्स हैं उसमें, तो वो डिसोल्व कर देंगे कोरोना रेडिएटा को। ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू पाथ बन गया। उसमें क्या है, हाइलोयूरिनेडेज है, ये फोलिकल सेल्स पे एक्ट करेगा। और इसमें एक्ट्रिसिन है, वो डाइजेस्ट कर देगा जोना पेलोसुडा का, जोना पेलोसुडा को। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्रोसोमल रिएक्शन। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में ही होता है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाता है ओसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, तो एक स्पर्म ही एंटर कर पाता है। ठीक है, तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। उसके बाद क्या होगा जी, कोर्टिकल रिएक्शन हो जाती है। कोर्टिकल रिएक्शन हो जाएगी कि जो सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन है उसके नीचे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, दे आर नोन एज कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक, एंड दे रिलीज कोर्टिकल एंजाइम बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलोसुडा। तो अब इसको वो हार्ड कर देते हैं, जोना पेलोसुडा लेयर को वो हार्ड कर देते हैं। अब हार्ड हो गई तो नो स्पर्म कैन एंटर हियर, स्पर्म की एंट्री रुक गई। चलो वहां तो रुक गई, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्पर्म की एंट्री होगी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कोन ऑफ रिसेप्शन जिसको हम कह देते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन, जहां से स्पर्म एंटर कर रहा है। तो पूरा का पूरा स्पर्म एंटर कर जाता है ओवम में। अब जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो प्रोन्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, वो प्रोन्यूक्लियस बना देगा, डिस्टल सेंट्रियोल डिवाइड करके माइटोटिक स्पिंडल बना देगा, और मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म अकर्स हियर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद होगी एम्फीमिक्सिस, कि उनके क्रोमोसोम भी तो मिक्स होने हैं, तो मेल प्रोन्यूक्लियाई फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मिक्स कर जाएंगे। क्या होगा देखो, अब ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ठीक है जी, एक तरफ फीमेल प्रोन्यूक्लियस, एक तरफ मेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों, और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है जो डिवाइड करेगा। और क्या बना देगा, किसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा हम इसको बड़ा बना लेते हैं। ये अपोजिट पोल से पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फाइनली जायगोट बन जाएगा। तो जायगोट में क्या होगा, यही दोनों लेयर, 23 इधर 23 इधर। नाउ इट इज फॉलोड बाय क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है कि जो जायगोट में सेल डिवीजन है उसको हम क्लीवेज कह देते हैं, सेल डिवीजन इन जायगोट। ठीक, जिससे एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है, जिससे साइज चेंज नहीं होता। क्लीवेज में नो ग्रोथ अकर्स, नो ग्रोथ इन एम्ब्रियो, साइज सेम रहता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगी क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक, तो ये सारे चेंजेस फ्रीक्वेंटली यहां पे दिखने लगते हैं। तो अब क्लीवेज की वजह से जो यूनिसेलुलर जायगोट था वो एक सॉलिड बॉल लाइक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, और इसमें 2 सेल, 4 सेल, 8, 16, 32 सेल
इस तरह से डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो 8 से 16 सेल्स जो स्टेज है जहां पे जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, तो वो स्टेज कहलाएगी मोरूला स्टेज। ठीक है, ये सारे चेंजेस इसमें होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट डायग्राम है फिर से कि एम्पुलर रीजन में जायगोट फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज, मोरूला बन गया। अब ये मोरूला अपने आप को चेंज कर देता है, मोरूला से ब्लास्टुला बन जाता है और उसमें कैविटी अपीयर हो जाती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो इस ब्लास्टुला स्टेज में ये अपने आप को एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ अटैच कर लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ये होती है लगभग 7 दिन बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टुलेशन अकर्स। ठीक है बच्चों, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम ये अपनी ग्रोथ वहीं पे करेगा, वहीं पे ये डेवलप होता रहेगा और अपना जो है जेस्टेशन पीरियड पूरा कर लेगा 9 मंथ्स का। एंड 9th मंथ के बाद जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो रिलीज हो जाएगा, ठीक, थ्रू बर्थ कैनाल। नाउ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, प्लेसेंटा कैसे काम करता है उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन किस किस के बीच में, बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, जिससे फीटस को सब कुछ मिलता है, वो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। अब ह्यूमन प्लेसेंटा के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा को अलग अलग नामों से जाना जाता है बच्चों। उसको कोरियोनिक कहते हैं। क्यों क्यों कोरियोनिक कहा जाता है, क्योंकि जो फीटल पार्ट है इज फॉर्म्ड ऑफ कोरियोन ओनली, फॉर्म्ड ऑफ कोरियोन ओनली। चलिए ठीक है, मान लिया इसको कोरियोनिक कहते हैं। इसको मेटाडिस्कोइडल क्यों कहते हैं, मेटाडिस्कोइडल क्यों कहा जाएगा जी, क्योंकि यहां पे विलाई अपीयर हो जाते हैं ऑन एंटायर सरफेस ऑफ कोरियोन। बट आफ्टर 2 months वो एक लेयर में प्रेजेंट रहता है, मींस इन अ सिंगल लेयर या सिंगल डिस्क कह सकते हो आप, कि इनिशियली तो ऐसे है लेकिन बाद में ऐसे है, तो उसको मेटाडिस्कोइडल कहते हैं। हिमोकोरियल क्यों कहते हैं, हिमोकोरियल को क्यों कहा जाता है जिसको, क्योंकि जो फीटल टिश्यू है, 3 फीटल टिश्यू के बैरियर्स होते हैं जो सेपरेट कर देते हैं फीटल ब्लड फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, और कोरियोनिक विलाई जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। और इसको डेसिडुअस भी कहा जाता है या डेसिड्यूकेट क्यों कहा जाता है, कि जो मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है इंप्लांटेशन के बाद वो फीटस और मदर के बीच में इंटीमेट कॉन्टैक्ट रखता है। तो बर्थ के टाइम पे कंप्लीट डेसिडुआ है जो है वो शेड ऑफ हो जाता है अलोंग विद प्लेसेंटा और ब्लीडिंग अकर्स, तो इसलिए इसको डेसिडुएट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो प्लेसेंटा में ब्लड सप्लाई है वो कैसे होगी, प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो एक तरफ हमारे पास फीटस है, एक तरफ हमारे पास प्लेसेंटा है। तो फीटस से प्लेसेंटा में और प्लेसेंटा से फीटस में, इस तरफ से तो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। यहां पे एक अम्बिलिकल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू फीटस, क्योंकि आईजीजी इसमें होते हैं। तो और इट एक्ट्स एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, इट एक्ट्स एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है या कहलाता है ये, कि एनसीईआरटी कहती है HCG, HPL, रिलैक्सिन ये हार्मोन ये सिक्रेट करता है।
ठीक है, इसलिए ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये कनेक्शन का भी पता चल गया, इन हार्मोन्स का भी पता चल गया, प्लेसेंटल हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो अब क्या क्या बाकी रह गया, अब तो पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो जैसे ही जेस्टेशन पीरियड पूरा होता है, जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं यूट्रस में, एंड एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपेल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, तो पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल है वो कहां से आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, जिसकी वजह से माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ बच्चों एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का रिलीज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और लैक्टेशन की हमने बात करी, कोलोस्ट्रम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम फीटल डेवलपमेंट को और डिस्कस करें क्विकली, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं फीटल डेवलपमेंट में, क्विक एक हम देख लेते हैं फीटल डेवलपमेंट। तो वीक 2 से चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। वीक 2 में 3 जर्म लेयर्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब इस स्टेज के बाद कोई रिसर्च अलाउड नहीं है ह्यूमन एम्ब्रियो पे। वीक 3 फीमेल में पीरियड्स या जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट हो जाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन पहला ऑर्गन होता है, प्लस स्पाइनल कोड की फॉर्मेशन हो जाती है। वीक 4 में जो फर्स्ट मंथ हो गया वो हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड। वीक 5 सबसे प्रोमिनेंट हार्ट बीट स्टार्ट, हार्ट बीट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। वीक 6 में आई और ईयर फॉर्मेशन। वीक 7 में हैंड एंड फीट फॉर्मेशन। वीक 12 में ऑल ऑर्गन फॉर्मेशन, हम कह सकते हैं फिटस फुली फॉर्म्ड। वीक 20 में हेयर स्टार्ट्स टू ग्रो। 24th वीक में आईलिड ओपन हो जाती है। दिस इज द लीगल लिमिट ऑफ अबॉर्शन। उसके बाद 28th वीक से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रेस्पॉन्ड करता है बच्चा, रेस्पॉन्ड टू टच, साउंड। और आफ्टर वीक 40 चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। ठीक है ना बच्चों मेरे, सो पार्चुरेशन न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, ऑक्सीटोसिन मेन पार्चुरेशन हार्मोन है विच कॉजेज लेबर पेन, और मिल्क इजेक्शन इसी की वजह से होता है। तो होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे अपने बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। और उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू गिव आंसर। मैंने इसके बाद आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप यहां से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1 मार्कर 2 मार्कर सारे के सारे कहां से कौन से ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो कीप स्टडिंग। ठीक, गुड लक।